So in the previous class, we have studied about the fixed budget, flexible budget, that is on the basis of the capacity. Then we did the budget on the basis of the coverage, that is functional budgets and the master budget. Now in the today's class, we are going to study about the cash budget first, and then we will see the other budgets. Now what is a cash budget? See, cash is very important part of any of the organization. So your operating budget ना, जो भी आपका day to day business का जो भी operating budget है, it is usually prepared in the terms of what? Obviously in the terms of the revenues and in the terms of the expenses. कि अब मुझे कितना revenue मिलने वाला है, मुझे कितने expenses होने वाले हैं. So for the financial planning part, हम क्या करते हैं? हमें ये estimates करना है कि what would be my receipts, what would be my payments for each of the month. कि मुझे पूरा पीरियड का मेरा बजट कितना होगा. व्हाट वुड बी माय कैश इनफ्लोज. कैश इनफ्लोज मींस व्हेन द कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, एंड कैश आउटफ्लो वेयर द कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. तो हम ये देखने के लिए व्हाट वी प्रिपेयर अ कैश बजट. So who will prepare the cash budget? Obviously the financial manager. The financial manager will be using this cash budget to make the plans, to ensure के जो भी organization है वो has a enough of the cash, and हम आगे मतलब we have a proper cash on hand during the year and we can plan our activities accordingly. So you can say that cash budget is very important tool in the cash management. It helps us to plan, it helps us to control the cash. So what is it? This is nothing but this is a statement which shows the cash inflow over the planning horizons. ठीक है, हमें ये हमें नेट कैश फ्लोज बताते हैं, हमारी कैश पोजीशंस क्या होगी वो हमें बताएगा. So you can even say that this cash budget is nothing but it is a device which will help a firm to plan as well as to control the use of the cash. समझ में आ रहा है? So for this purpose, your projections become very much, this important. तो कैश बजट हम कब प्रिपेयर कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर अ कैश बजट एनुअली, वी कैन प्रिपेयर इट हाफ ईयरली, हम क्वार्टरली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, बाय मंथली बना सकते हैं. Then we can prepare it weekly, or even the cash budget is prepared even for the daily basis. But normal practice में अगर आप देखोगे तो वो monthly ही होता है. Cash budget is prepared on a monthly basis only. So what is the principal aim? अगर आप लोगों को कोई पूछे कि बच्चा what are the principal aims for preparing the cash budget? So the cash budget as a management tool is to predict the cash flows over a given period of time. Okay, here you are going to predict, here you are going to project it up. ठीक है, and what you are going to ascertain, here you are going to ascertain कि जो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास या तो एक्सेस तो कैश नहीं है, मेरे पास शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है कैश का. सो अ एडिक्वेट एंड द प्रॉपर टाइमली स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस. ठीक है, तो इसका अगर कोई आपको पूछेगा कि व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द पर्पसेस, इसका पर्पस क्या है कैश बजट बनाने का? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द पर्पस देन? It will help us to coordinate with the timings of the cash needed. अगर मुझे जरूरत आ गई और मेरे पास कैश नहीं आया तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि I should not come with a shortage. अगर कभी मुझे abnormal large cash की requirement आ गई तो अगर मेरे पास नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा. तो अगर पहले से कैश बजट बना हुआ होगा तो this problem can be solved easily. Excess कैसे? तो I can go for the investment as well. We can plan for the investment from that excess of the cash. So even it enables the firm to have a sufficient cash. कि जब भी मुझे अगर देखो अगर sufficient cash हुआ तो हम जो भी हमारे obligations है वो timely pay कर सकते हैं. And whenever there will be a need of the funds, we can easily arrange it as well. In the most of the favorable conditions also we can arrange it up. समझ में आ रहा है? So the cash budget plays a very vital role in the financial management of the business. It even helps to forecast it up. Forecast करने में भी help करता है. What are its functions? ये ensure करता है हमें कि हमारे पास sufficient cash available होगा जब भी मुझे required होगा. मेरे पास अगर कोई expect मेरे को shortage जो भी है
अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है तो वो मुझे पहले से ही रिवील हो जाएगा. Then I can preserve the liquidity because of this. मैं इन्वेस्टमेंट अगर एक्सेस है तो आई कैन गो इट फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एज वेल. अगर कभी सीजनल रिक्वायरमेंट्स हुई, अगर मेरा सेल बढ़ गया तो आई विल हैव टू पे द इनकम टैक्स एज वेल ऑन इट. तो अगर मेरे पास कैश है तो आई कैन इवन पे द दिस इनकम टैक्स ऑन अ टाइमली बेसिस. And if the funds are been matlab available with me, तो even I want to if purchase the asset or replace the asset, अगर मुझे मेरी स्कीम्स को एडवांस करना है, if I want to modify my existing plans, तो even I can do it with the availability of this cash. So it has its own advantages like usage of cash. Management can plan out the proper use of the cash. कितना मेरा रिसिप्ट है, मुझे कितना मिलने वाला है, मुझे कितना पेमेंट करने वाला है, and accordingly they can balance their working capital. Allocation for the capital investment, as I told you, if excess is there, so you can go it for your capital investment as well. आप provisions बना सकते हो short terms and the long terms के लिए. You can go for the policies as well. और अगर आपके पास कैश है तो you can easily timely pay the dividend as well. So this all are the advantages for preparing the cash budget. Now this is a format of a cash budget. Your format, अगर आप monthly बना रहे हो ना, remember one thing, if you are preparing on a monthly basis, so there will be a opening stock which will be coming and the head, सबसे ऊपर opening balance will come, and then you start with the receipts part and then with the payment parts. Okay, तो पहले सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस if it is there then it will be there for first month it will be given like that. यहाँ पर जैन है तो जनवरी का दिया होगा. फेब्रुवरी का कैसे मिलेगा? जैन का जो भी क्लोजिंग होगा that it becomes opening for the February. फेब्रुवरी का जो भी क्लोजिंग होगा that will become the opening for the month of the March. ठीक है, so you have to first take down all the receipts, then you have to subtract the payments from it. तो अब receipts में भी कौन कौन से receipts आएगी? कैश सेल्स, ठीक है, आपने जब सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो कैश सेल्स विल बी देयर. कलेक्शन फ्रॉम योर डेटर्स, अगर आपको डेटर्स से पैसा मिला बिकॉज ऑफ द क्रेडिट सेल. देन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था अपना एक्सेस, तो अगर आपको कुछ इनकम्स मिली फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, अगर सेल ऑफ द फिक्स असेट्स किया तो उससे अगर आपको इनकम मिली. इफ यू हैव गॉट द इंटरेस्ट और दिस डिविडेंड, इंटरेस्ट मे बी इट विल बी ऑन द बोरोविंग्स. ठीक है, अगर आपने किसी को लोन दिया होगा तो यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट. अगर आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. शेयर्स पे यू विल बी गेटिंग द डिविडेंड एज वेल. ठीक है, सो एनी अदर कैश रिसिप्ट्स जो भी आपको मिलेगा दैट विल बी अंडर द हेड रिसिप्ट्स, दैट विल कम अंडर द हेड रिसिप्ट्स. तो ओपनिंग बैलेंस में यू विल ऐड द रिसिप्ट्स एंड देन यू विल सबट्रैक्ट द पेमेंट्स. नाउ पेमेंट्स मतलब अगर हमने कैश में परचेजेस किया, सो ऑब्वियसली आई नीड टू गिव द पेमेंट. I need to, अगर क्रेडिट परचेज है तो आई नीड टू गिव टू पेमेंट टू माय सप्लायर्स. अपार्ट फ्रॉम इट मेरे बिजनेस अगर हम लेके बैठे तो कितने सारे पेमेंट्स होंगे. सैलरी वेजेस देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे. वी नीड टू पे द टैक्सेस. इवन अगर लोन लिया तो रीपेमेंट करना पड़ेगा लोन का, डिविडेंड पे करना पड़ेगा. सो जितनी भी इनकम्स आपको क्वेश्चन में दी गई होगी यू हैव टू सबट्रैक्ट ऑल योर पेमेंट्स. ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जस्ट दिस डिडक्ट ऑल योर एक्सपेंसेस. तो आपको देखो यहाँ से मिलेगा टोटल रिसिप्ट्स, यहाँ से मिलेगा टोटल पेमेंट्स. सो हाउ यू विल बी गेटिंग अ क्लोजिंग A माइनस B. रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट विल गिव यू द क्लोजिंग बैलेंस. बट ये वाला जो फॉर्मेट है वो किसके लिए है? जब आप मंथली बेसिस के लिए बना रहे हो. तो और दूसरा भी एक फॉर्मेट है, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं लिखना है ना, if you don't want to write down in the starting, what you can do, you can easily directly start from the receipts and the payments. Like first you will be writing down all the receipts, then take a total of the receipts, payment, then take a total of the payments. फिर जो आपको नेट रिसिप्ट्स मिलेगी ना, A माइनस B, नेट रिसिप्ट्स ले लो, A माइनस B नेट रिसिप्ट्स, एड ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलेगा.
तो आप अगर आगे आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड नहीं करना है तो आप नेट रिसिप्ट्स के बाद भी यू कैन एड इट अप द ओपनिंग बैलेंसेस. तो एट लास्ट यू विल बी गेटिंग अ क्लोजिंग बैलेंस. समझ में आया? वेरी इजी, बहुत इजी है ये. अगर फॉर्मेट समझ में आ गया, सिर्फ इतना याद रखना, व्हाट इज कमिंग इन विल बी गॉन इन द रिसिप्ट्स. जो भी एक्सपेंसेस करे विल बी रिटर्न आउट इन द दिस एक्सपेंसेस. Okay. Now our next topic is zero-based budgeting. Okay. Now what we mean by a zero base? Zero का मतलब होता है starting से, zero से start करना, starting from the base, starting it from the scratch. So zero base also refers to the nil budget as from the starting. हमने जो भी प्रीवियस बजट्स बनाए होंगे, हम अभी उसको एज अ बेस कुछ नहीं लेंगे, हम नए से शुरुआत करेंगे. हम वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम अ स्क्रैच, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द जीरो. So it start with the presumption that a budget for the next period is zero. ठीक है? Until the demand for the function, process or a project is not justified. Okay, so what is zero budget? Zero-based budgeting. It is an approach to make a budget from a scratch, that is from the base. The base will be taken at as a zero. तो as I have told you, previous year का जो भी budgets बनाए उसको हमें देखना भी नहीं है. We have to, हमें क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नजरअंदाज करना है हमें. And what we have to prepare? We have to prepare a fresh budget from it. And this method is quite accurate. It is more accurate. Why? Because it is not based on the previous any of the budgets. Here, instead of the previous, taking the previous as a base, आप zero से start कर रहे हो. You are starting it from the zero. Okay. So with a zero-based budgeting, you need to justify your every expenses before adding it to the official budget. आपको justify करना होगा आपने ये expenses क्यों किया है, तभी जाके आप उसको official budget में add कर पाओगे. तो अब इसका गोल क्या है, तो ये आया क्यों था, what was its basic goal? तो इसका जो गोल था was to reduce the spending, कि हम जो भी हमारे spending से हम उसको reduce कर पाए, हम जो भी हमारे cost है उसको cut कर पाए. आज भी ये प्रैक्टिस में है यार, जीरो बेस्ड बजटिंग. हु डेवलप्ड इट? अगर आप लोगों को कोई पूछ रहा है कि हु डेवलप्ड इट, कहां से ये डेवलप्ड हुआ था? सो इट वाज डेवलप्ड एट द टेक्सास in 1969 by the Peter Fair. पीटर फेयर ने जीरो बेस्ड बजटिंग को डेवलप किया था. इट वुड बी देयर व्यू. नहीं है तो यू राइट इट डाउन समवेयर. Who used the zero-based budgeting later? तो zero-based budgeting जो practice में है, it was been used in 1969 by the Peter Fair. लिखा? तो सबसे ज्यादा रैपिडली इंट्रोड्यूस कहां पर हुआ था? इट वाज बीन इंट्रोड्यूस इन द यूएसए एंड इन द कनाडा. एंड द जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट. अब ये जो है ना, ये हमारा कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल बजटिंग. क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल बजटिंग थे ना, उसपे हम पास्ट ट्रेंड्स लेते थे, हमारे पास्ट सेल्स, हमारे पास्ट एक्सपेंसेस लेते थे, और हम उसको ये सोचते थे कि हाँ दिस आर गोइंग टू गेट कंटिन्यू ना. तो हम सारा पास्ट की चीज लेते थे और ये सोचते थे कि दिस विल गेट कंटिन्यू. बट इन जीरो बेस्ड बजटिंग हम पास्ट का तो कुछ भी नहीं ले रहे. वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द बेस. So zero-based budgeting assumes that there are no balance which will be carried forward, or there are the no expenses which are been pre-committed. हम ऐसे कोई भी expenses नहीं है जो हमने पहले से decide करके रखे हैं. Okay, so it goes. इसके steps है how, मतलब zero-based budgeting when you do ना, we have a steps for it and we need to follow the steps. And one more thing, it is very important. It can come for the कि what are the requirement. इसकी applications क्यों हो रही है? What are the basic applications? What are the basic requirements of it? So इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हर एक
के पास बजटिंग का सिस्टम होना बहुत जरूरी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इट इज लाइक मैनेजर हैज टू डेवलप दिस क्वांटिटेटिव मेजर सो दैट जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो। तो अगर हमें डिसीजंस लेने हैं ना, तो व्हाट आर द फेयर वाज द ऑफ द ओपिनियन, एज आई टोल्ड यू कि दिस वाज बीन डेवलप्ड बाय पिटर फेयर। तो व्हाट वाज द पिटर फेयर ऑफ द ओपिनियन, दैट कि अगर आपको डिसीजंस लेना है ना, तो यू टेक इन दिस, यू डिवाइड दिस इनटू द टू पैकेजेस, one mutually exclusive package and one another will be the incremental packages. Okay, so what are its steps कि हम इसका क्या steps, what are the steps which will be taken? तो सबसे पहले just a minute, I will be writing down over here only the steps for it. First one, you need to identify your cost center कि आपको किसके लिए जरूरत है, आपको आइडेंटिफाई करना है, वेदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई करो। Identify the decision units or you can say the cost centers. Cost centers like marketing department, production department, finance department, they are your cost centers. Second, make the decision package. मैंने अभी आपको बोला ना, either there are the two ways, either it can be a mutually exclusive or it can be the incremental package. So the second point will be making decision packages. Third one, okay, जो third one will be you have to give the ranking to the decision process. You have to give the ranking to decision process. रैंकिंग मतलब कि आपके जो भी स्केर्स रिसोर्सेज है ना, वो प्रॉपरली अलोकेट होने चाहिए, दैट आल्सो इट शुड बी अलोकेट इन द प्रॉपर मैनर. सो यू हैव टू अलोकेट योर रिसोर्सेज, allocating, sorry, available resources based on the ranking. And the last part will be after allocating, controlling and monitoring के जो भी हमारे resources जो available है वो accurate हुए या नहीं, but whether it was been done on accurately or not. So the fifth step will be controlling and monitoring. What you have to monitor, okay, whether allocation of resources is done accurately or not. These are the 5 steps which are been involved in the zero-based budgeting. So what is performance budgeting? तो performance budgeting ना evaluate करता है हमारे performance को. हमारे performance when I say that this evaluate the performance of the organization. ये दोनों देखता है कि आपका जो गोल है वो अचीव हुआ है या नहीं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो स्पेसिफिक थे एंड वेदर दोस ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड और नॉट. सो ये क्या करता है, ये हमें एक प्रॉपर डायरेक्शंस देता है कि हम जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वेदर दिस इज प्रॉपर, हमारा जो मैकेनिज्म है इज दैट मैकेनिज्म प्रॉपर. सो इट हेल्प्स इवन अस कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द मैकेनिज्म एज वेल. तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, द बेसिक ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर कि इट इज बोथ
to reflect the input of the resources as well as the output of the resources हर एक यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप बेसिकली एक परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, और जब भी आप परफॉर्मेंस बजटिंग बोलते हो, इट प्रोवाइड्स ऑलवेज द आउटपुट ओरिएंटेड बजट। इसकी जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ऑलवेज इट इज फॉर अ लॉन्गर टर्म, हमें ये इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से दिखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी अलोकेट द रिसोर्सेज। फिर ये देखा जाता है कि वेदर दिस अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज वाज डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और नॉट। सो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हमें फंड्स क्यों रिक्वायर्ड है, मुझे कितनी कॉस्ट हुई है मेरी एक्टिविटीज की, मेरा वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, मेरा हर एक डिपार्टमेंट हर एक एक्टिविटी में हाउ माय वर्क इज गेटिंग परफॉर्म, एंड देन वी मेजर द क्वांटिटेटिव डेटा फॉर दिस। सो योर परफॉर्मेंस बजटिंग गिव्स यू द इंस्पिरेशन कि हाँ आपका परफॉर्मेंस कैसा है फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ द व्यू। And performance budget requires a preparation of the periodic performance reports। आपको ये देखना है कि आपके कैसे जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। Who is going to take it? Obviously departmental head will be responsible for preparing it, because उनको ही पता होगा ना कि उनके डिपार्टमेंट में कैसा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, whether the goals have been achieved or not, whether the purpose has been served or not, objectives were achieved or not, proper production and the services was been done। So from the perspective, मतलब अगर आप देखोगे it focuses more on the future impact। तो अगर कुछ changes है, अगर कभी कुछ lacunas है, तो we can just change it up। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, we just take a decision making over here in the performance budgeting, and we see the outcome कि क्या outcome आया है इसका। सो ये वाला जो बजट है वो कौन यूज करता है? सो परफॉर्मेंस बजट मेनली इट इज बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज एंड द एजेंसीज एज वेल। It's not like only the organization is using, even the government bodies are and the agencies are also using this type of budget. Why? To show the link between the taxpayers fund and the outcome of the services। कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसका आउटकम क्या आ रहा है, and who will be providing it? Federal, state or a local government will be providing it। So after our this performance budget, the next budget is a capital expenditure budget। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट किसका टाइप है? फंक्शनल का टाइप है, फंक्शनल बजट का एक टाइप है। ओके, व्हाट इट शोज, so this budget stands for the expenditure on all the fixed assets for the duration of the budget period। क्या आप अपने फिक्स एसेट्स पे कितना खर्चा कर रहे हो यहाँ पर। तो ये वाला जो बजट है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बनता है, बिकॉज ना फिक्स असेट्स ऐसे हम ये सोच के थोड़ी ना लगते हैं आज लेते हैं कि मेरा फिक्स असेट्स आज है, मैं नेक्स्ट मंथ में उसको बेच दूंगा, नेक्स्ट मंथ में वो खराब हो जाएगा। नो, इसका जो भी यूज होगा दैट विल बी ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्गर टर्म। So while preparing the capital expenditure budgets, there are certain of the factors which needs to be considered। पहले से ही हमें देख लेना है कि हमारा मुझे अगर मेरे जो एग्जिस्टिंग असेट्स है मुझे उसको कौन से टाइम पर आई नीड टू रिप्लेस इट अप, कभी नीड अराइज होती है मुझे रिप्लेस करने की। इफ आई वांट टू इंस्टॉल द न्यू असेट्स, ठीक है, तो व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर इट, कि मुझे क्या ऐसी नेसेसिटी पड़ गई कि मुझे नए असेट्स को इंस्टॉल करना पड़ रहा है, उसका मुझे कॉस्ट कितना पड़ेगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इट एंड इंस्टॉलिंग, बिकॉज इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑल्सो इज अ हायर दिस डेज। एक मशीनरीज अगर आप जाओगे बड़े बड़े मशीन पे, इट टेक्स crores of rupees to buy the machines। and to make this capital expenditure, do we have any financial resource? हमारे पास adequate financial resources होंगे तो ही तो हम capital expenditure कर पाएंगे, और ऐसे तो है नहीं कि असेट्स ले लिया तो हमें उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। वी विल बी हैविंग अ मेंटेनेंस चार्जेस एज वेल, वी विल हैव टू इनकर द रिपेयर चार्जेस एज वेल। सो दिस बजट इज ऑलवेज फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड इट इज प्लान फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स इन द एडवांस। मेरे पास्ट में मुझे देख के मैं उसको ये करूंगी कि हाँ मुझे कितने ईयर्स तक ये मुझे बेनिफिट दे सकता है। ओके, देन after it we have a selling and distribution cost budget। Now
This budget, what it forecast of our selling and distribution expenses of the company, कि कितने एक्सपेंसेस, मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, कितना मैं एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करूंगी, कितना मुझे गुड्स डिलीवर करना है, तो डिलीवरी चार्जेस थी. इफ दे आर गिविंग द फ्री होम डिलीवरी डजंट मीन्स के वो कंपनी को कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रहा है, कंपनी इज आल्सो इनकरिंग द कॉस्ट, उसको भी तो डिलीवरी बॉय को चार्जेस देने पड़ेंगे, ट्रक से आ रहा है तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा. सो हियर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दे दे फोरकास्ट कि मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने होंगे ड्यूरिंग माय बजटेड पीरियड. तो ये वाला जो बजट है ना, इन लोग क्लोजली पहले ये देखते हैं कि मेरा सेल बजट कितना है, तो दे टेक अ क्लोज कनेक्शन विद द सेल्स बजट, क्योंकि ऑब्वियसली ना सेलिंग एक्सपेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स. अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो आपको सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो इनकर्ड करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू सी कि मेरा मार्केट कवरेज क्या है, मार्केट एरिया का, मैं कौन सा चैनल लूंगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ माय प्रोडक्ट्स, व्हाट विल बी द पॉलिसीज व्हिच आई विल बी गिविंग, whether I will be giving the commissions to my salesperson or not, whether I need a proper advertisement for this purpose or not, whether I'm going to give the credit to my customers, packing charges, delivery charges will be incurred. सो दिस बजट हैज टू बी वर्कआउट. सब लोगों को साथ में देख के, मुझे सबका कॉपरेशन चाहिए, मुझे सेल्स मैनेजर भी चाहिएगा, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग मैनेजर भी चाहिएगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर भी चाहिएगा, एंड आई विल ऑल्सो रिक्वायर अ कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर मेकिंग दिस बजट. समझ में आ रहा है? So this was all about the theory of your budget and the budgeting, where we have completed the theory. Now from the next class, we are going to start with the sums on each of the type of this budgets.